हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ PSSB ਦਾ ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ MCQ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀਆਂ PDF ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, the formula in cell D5 is sum D1 D4। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ D1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D4 ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਸੈੱਲ D5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ D1 ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D4 ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ D5 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ D9 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, D1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D4 ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ D5 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ D1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D4 ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, D ਆਪਸ਼ਨ, D5 ਤੋਂ D8। ਇੱਥੇ 9 ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਰਰ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ D5 ਤੋਂ D9 ਸੀ। ਸੋ D5 ਤੋਂ D8 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ D9 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ D9 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, D8 ਤੱਕ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ, which of the following shortcut keys is used to open a new workbook in MS Excel। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਪਨ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਤਾ Ctrl+O, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ Ctrl+N, D ਆਪਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਵਰਕਬੁੱਕ ਇਨ MS Excel। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਓਪਨ ਅ ਨਿਊ ਵਰਕਬੁੱਕ। ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਏਗਾ Ctrl+N। ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਓਪਨ existing workbook, अगर existing word नाल यूज करदा फिर आप आंसर टिक करके आंदे Ctrl+O। सो इथे राइट ऑप्शन आएगा Ctrl+N, D ऑप्शन। क्लियर है, तो Ctrl+A के लिए होंगे सिलेक्ट ऑल, Ctrl+M यूज होंगे ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ Ctrl+M ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, which among of the following is printed output from computer। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ, सॉफ्ट कॉपी, पेपर या डुप्लीकेट कॉपी। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर A, हार्ड कॉपी। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुल फॉर्म ऑफ HTML। ऑप्शन नंबर A, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर B, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक। ऑप्शन नंबर C, हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। एंड ऑप्शन नंबर D, हाइपरटेक्स्ट मैनेजमेंट लिंक।
सो ए इज द राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस ਨੂੰ डिजाइन करने लिए ਇਹਦਾ यूज ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। केड़ा प्रोटोकॉल इंटरनेट नाल जुड़े क्लाइंट नू IP दा पता निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए IP, ऑप्शन नंबर बी RPC, ऑप्शन नंबर सी BIOS एंड ऑप्शन नंबर डी DHCP। सो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी DHCP, जिदी फुल फॉर्म होंदी है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। IP ਦੀ फुल फॉर्म की होंदी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। BIOS ਦੀ फुल फॉर्म की होंदी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बूटिंग के दौरान जिदा यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है IP इन इंटरनेट इज। IP दी फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट पाथ। सो सी इज द राइट आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है क्लास? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड इन MS Word टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर। सो ऑप्शन नंबर ए Ctrl+J दा यूज होंदा है टू जस्टिफाई। ठीक है, बी ऑप्शन Ctrl+E, Ctrl+E दा यूज होंदा है सेंटर। ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट नू सेंटर दे विच लेके आने लई। सो बी इज द राइट आंसर। सी कॉपी Ctrl+A सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। Ctrl+E is used in MS Word to align the selected text in center। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, which of the following software is the most appropriate to perform statistical calculation। हेठां दिते सॉफ्टवेयर विचों केड़ा आंकड़ियां दी गणना करन लई सब तो ढुकवां है। ऑप्शन नंबर ए स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, है ना, वर्ड प्रोसेसर MS Word। सो ए इज द राइट आंसर, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्राफ्ट फोल्डर इन ईमेल यूज टू। ड्राफ्ट फोल्डर किस लिए वरत्या जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टोर स्पैम ईमेल्स, बी सेव अनसेंट ईमेल्स, डी डिलीट ईमेल्स एंड डी मेक कॉपी ऑफ ईमेल। हाँ जी, सो राइट आंसर क्या आएगा, सेव अनसेंट ईमेल। कोई आप मेल लिख रहे हैं ना, आप अनसेंड नहीं करते, वो सेव हो जाता है कितने, ड्राफ्ट फोल्डर दे विच, है ना। सो अ ड्राफ्ट आप ये भी कह सकते हैं, अ ड्राफ्ट इज सिंपली एन ईमेल मैसेज यू हैवंट येट सेंट, जिन्हों तुम अजे तक सेंड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेल मर्ज फील्ड। स्पेलिंग ठीक कर लियो, मेल मर्ज फील्ड। मेल मर्ज फील्ड का सिंटेक्स की है। सो बी इज द राइट आंसर, इनवाइटेड कॉमा नाल लिख दें आप। ठीक है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following provides a mean of printing out features not with a miniature slide on a printed page? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਚਰਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ऑप्शन नंबर ए ऑडियंस हैंडआउट, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड विद एनिमेशन, आउटलाइन व्यू, एंड ऑप्शन नंबर डी नोट्स पेज. सो ए इज द राइट आंसर, ऑडियंस हैंडआउट. ऑडियंस हैंडआउट इज द राइट आंसर. अगर ऑडियंस ਨੂੰ किसी प्रेजेंटेशन ਨੂੰ प्रिंट ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ऑडियंस हैंडआउट, ठीक है, ऑडियंस हैंडआउट फीचर ਦਾ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਹੈਂਡਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, which of the following is not considered as hardware? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ A CPU, it's a hardware. Monitor, it's also a hardware. Option number C hard disk, it's also a hardware. And option number D BIOS, it's not a hardware. BIOS hardware नहीं है, it's a kind of software, basic input output system. So D is the right answer. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन. स्पीड ऑफ कंप्यूटर कह लो, स्पीड ऑफ प्रोसेसर कह लो, इक्को ही गल है, ठीक है. वैसे आप की कहना है कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन हर्ट्स, ठीक है. सो लेकिन इन्होंने की दे रखे है, बी ऑप्शन भी दे रखा किलो हर्ट्स, सी ऑप्शन दे रखा मेगा हर्ट्स, डी ऑप्शन दे रखे है गीगा हर्ट्स. सो लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर जो ने अज दे कंप्यूटर ने उन्होंने स्पीड किद्दां मेजर की जाती है गीगा हर्ट्स के विच. सो डी इज द राइट आंसर. वैसे किलो हर्ट्स के भी मेजर की जाती है, मैगा हर्ट्स भी की जाती है, गीगा हर्ट्स भी की जाती है, लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर ने गीगा हर्ट्स, मॉडर्न कंप्यूटर की स्पीड जो है गीगा हर्ट्स नाल आपां मेजर करते हैं. सो डी इज द राइट आंसर. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट देखो, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू कनेक्टेड टू अ. कंप्यूटर ਨੂੰ इंटरनेट नाल जोड़न लई किस नाल कनेक्ट करना पैंदा है? ऑप्शन ए इंटरनेट मार्केट, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस सोसाइटी, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड डी डिफरेंट कंप्यूटर. सो सी इज द राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जिमें कि तुसी ये भी कह सकते हो कि इंटरनेट मॉडम, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनेट मोडम वायरलेसली, या कह लो और वाया इंटरनेट केबल, ठीक है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिमें कि सिम जेडे अपने जियो, एयरटेल, आइडिया, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ स्लाइड्स इन थंबनेल्स फॉर्म. थंबनेल रूप विच स्लाइड का विशेष दृश्य की है? सो ऑप्शन ए स्लाइड सोटर व्यू, बी स्लाइड व्यू, सी प्रेजेंटेशन सोटर व्यू, एंड डी नोट्स पेज व्यू. हाँ जी. सो क्या आएगा? स्लाइड
सोटर व्यू या थंबनेल व्यू भी कह सकते हो। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एलिमेंट ऑन वीडियो मॉनिटर। हेठ लिखिया विचों वीडियो मॉनिटर दे सब तो छोटा विजुअल एलिमेंट केड़ा? वेरी इजी, पिक्सल। आपां कहने भी इन्ना इन्ने मैगा पिक्सल है ना। सो बाइट नहीं आएगा, बिट नहीं आएगा, करेक्टर नहीं आएगा, पिक्सल इज द राइट आंसर। पिक्सल इज द राइट आंसर। ठीक है। Which of the following block of text is added at the end of the outgoing email automatically? हेठां दिते गए विचों केड़ा टेक्स्ट दा ब्लॉक एक आउटगोइंग ईमेल दे अंत विच अपने आप जोड़िया जांदा है? देखो, जदों आपां ईमेल भेजदे हां किसी नूं, है ना, 3 पार्ट्स हुंदे ने। फस्ट पार्ट नूं आपां बोलदे हां हैडर, जिहदे विच आपां सबजैक्ट लिखते हैं। सबजैक्ट कह लो, डेट टाइम कह लो, ठीक है, दैट इज हैडर। फिर अपने को आंदा है बॉडी पोर्शन, जिहदे विच आपां टेक्स्ट टाइप करते हैं, है ना। लास्ट ऑप्शन आंदा है जिहदे विच आपां रिगार्ड करके लिखते हैं, है ना, जिथे आपां किसी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। उन्होंने आपां बोलते हैं सिग्नेचर ब्लॉक। लास्ट पार्ट नूं आपां बोलते हैं सिग्नेचर ब्लॉक। So end of the outgoing email automatically is signature block। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following terms is used for physical arrangement of a network? नेटवर्क ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਰੂਟਿੰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एंड ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। सो नैटवर्क नूं फिजिकली अरेंज करन नूं आपां की बोलदे हां? टोपोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फंक्शन इज इक्वल टू सीलिंग विल गिव रिजल्ट ऑफ। हाँ जी, सीलिंग का मतलब की हुंदा है? What is the meaning of ceiling? बोलो। सीलिंग का मतलब हुंदा है बिगेस्ट वैल्यू। जो भी आपां नूं वैल्यू गिवन है, इनू राउंड ऑफ करके नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है इसकी। ठीक है। हुण देखो 19283 है, ये नहीं आ सकता। पॉइंट भी नाल है ना, आप नेक्स्ट वैल्यू तो जाना है, सो बी ऑप्शन नहीं आ सकता, है ना। 19283.12 दी नेक्स्ट वैल्यू की आएगी 19284, सो इट्स अ राइट आंसर। डी ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर है जी। ये सी थोड़े मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस। आई होप क्लीयर होंगे रजे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुहानू सैकेंड शिफ्ट के MCQ डिस्कस करवाऊंगा। अगर अजे स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के कॉमेंट सैक्शन के पूछ लियो। ओके, थैंक यू।